Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. Yes, okay. And today we are going to start a new chapter. Before this, we have studied about automobile industry, and today we are going to start a new topic about information technology and electronics industry. Okay. The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television. This means electronics industry. This covers started from a simple transistor to television and also telephone, cellular, telecom and telephone exchange, radar, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. Bangalore has emerged as the electronic capital of India, and Bangalore, one of the most important electronic city of our country, India. Where is Bangalore? You can see here. See beta? Okay? Yes. Look at all these places in map. Okay, beta? So, other important centers of for electronic goods and also in India, not only one place is famous for its electronic goods, but also in India मीन्स हमारे इंडिया में एक ही जगह पर केवल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हमारे कंट्री में और भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पाए जाते हैं. एंड दीज प्लेसेस आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर. So see here in map first see Mumbai. See beta, Mumbai also you have seen. Okay, and next one Delhi also you have seen here. Delhi, next after Hyderabad. Hyderabad also you have seen. Pune also you have seen. See here Pune. Find out Pune. Yes. Yes, Pune. Got it? Pune and also Chennai. Where is Chennai? Chennai is here. Okay. Kolkata. Kolkata is also here. And next one after Kolkata, see Lucknow. Isn't it? All these places are famous for its electronic goods. ये सारे places हमारे electronic goods के लिए famous हैं. Okay. And also not only this, some of the major इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज़ एट बेंगलुरु. और जो कुछ इम्पॉर्टेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई है, चेन्नई, हैदराबाद एंड ऑल्सो पुणे. मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज़ बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंड दिस इंडस्ट्री गिव्स अ मेजर impact especially on the employment generation. And through this industry many of people got a lot of employment through this industry. Okay, through this industry a major impact of in this industry has been on employment generation. The continued growth in the hardware and software is the key to the success of IT industry in India. और आपने देखा कि जो कंटिन्यूअस जो ग्रोथ है, किसमें ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में. दिस टू इज़ द की टू द सक्सेस. ये दोनों एक आप कह सकते हैं कि ये चाबी है जिसकी किसकी सक्सेस के लिए, IT इंडस्ट्री इन इंडिया मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसके लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. Although industries contribute significantly to India's economic growth and development, you have seen that industries played a very important role in the growth of or means moving forward in economic field for both for our country and also for the industrialists and also for other company owners.
आपने देखा कि जो इंडस्ट्रीज़ है ये हमारे इंडिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, द इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ लैंड, लेकिन क्या हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जो कि धीरे धीरे किसमें इंक्रीज होने लगा, पॉल्यूशन में इंक्रीज होने लगा। और पॉल्यूशन किस तरह के, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन, इस चारों पॉल्यूशन के धीरे धीरे इंक्रीज होने के कारण एंड रिजल्टिंग डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट डेट, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट में धीरे धीरे गिरावट होने लगी। इन्वायरमेंटल जो है एयर वो फ्रेश नहीं रह गए। that they have caused cannot be overlooked. Industries are responsible for 4 types of pollution, और इन सब चारों पॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है। हम चाहते सब लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते, सबके पास सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, कंपनीज हों, तो क्या है ये नहीं कोई सोच पा रहा है कि इसकी वजह से कितना पॉल्यूशन है, रहना मुश्किल हो गया है। तो ये चारों पॉल्यूशन किससे होते हैं, इंडस्ट्रीज है। विच आर दिस 4 पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। ओके, सो industries, air pollution, water pollution, land pollution and noise pollution. The polluting industries also include thermal power plants, और हम thermal power plants को नहीं छोड़ सकते हैं। This is also included in this pollution, इसको भी हम इस pollution में include करते हैं। Which one? Thermal power plants. So first of all we will start discuss air pollution. Air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases. Air pollution कैसे होता है, वो बहुत ज़्यादा जो undesirable gases होती हैं उनकी उपलब्धि, उनकी जो प्रेजेंस होती है, सच एज कौन कौन सी है जिनकी ज़्यादा उपलब्धि है, जिसकी ज़्यादा प्रेजेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Question may ask, name two gases which are responsible for the formation of air pollution. So answer will be yes, sulfur dioxide and carbon dioxide. Okay, airborne particulate materials contain both solid and liquid particles. जो एयरबॉर्न जो पार्टिकुलेट मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, बहुत सॉलिड भी होते हैं प्लस लिक्विड पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइक डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट एंड स्मोक। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ये स्मोक्स कहाँ से आते हैं, निकलते हैं, मेनली हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज से, केमिकल इंडस्ट्रीज से प्लस पेपर इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से। ब्रिक kiln, जहाँ आप ईटा बनते हुए देखे होंगे ना, भट्टी आप लोग जाते होंगे कहीं तो रास्ते में दिखता होगा, उसमें से भी धुआं निकलता है। रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स, जहाँ पर लोहे पिघलाने का काम होता है। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज एंड दैट इग्नोर पॉल्यूशन नॉर्म्स, एंड दीज आर द थिंग्स फॉर द एयर पॉल्यूशन। कौन कौन से हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इन बिग और इन स्मॉल फैक्ट्रीज। ये मायने नहीं रखता कि बड़े फैक्ट्रीज में है या छोटे फैक्ट्रीज में है। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हैजर्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो टॉक्सिक गैस अगर बाई चांस लीकेज हो जाती है तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसका असर छोड़ जाता है। आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना ही होगा, जिसकी वजह से आज तक वहाँ पर अभी जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो भी उनके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ ही जाता है। ठीक, एयर पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, और हम इस तरह से कह सकते हैं कि एयर पॉल्यूशन है जो वो मेनली किसको हर्ट करता है, किसको नुकसान पहुंचाता है,
हमारे ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। ये नहीं कि एक चीज़ को नुकसान पहुंचा करके वो शांत हो जाता, नहीं, इससे कई सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर के नुकसान करता है। वाटर पॉल्यूशन, नेक्स्ट आफ्टर एयर पॉल्यूशन इज अ वाटर पॉल्यूशन। Water pollution is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into the rivers. वाटर ये कैसे होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो कि हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज डाल देते हैं पानी में। द मेन culprits इन दिस रिगार्ड आर पेपर, और इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन ठहराया जाता है? पेपर, पल्प, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tannerings and electroplating industries that let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticide, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मेन दोषी हैं किसके लिए? वाटर पॉल्यूशन से। कि आपने देखा होगा ना, ये कानपुर लेदर के लिए फेमस है, तो वहाँ पर लेदर ट्रेनिंग होती है लेदर की, तो वो सारा वेस्ट जो है वो पानी में ही जाता है। फ्लैश ऐश, जानवरों को जलाते हैं तो उनका राख है। फॉस्फोर, जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स are the major solid waste in India. Now thermal pollution of water occurs when hot water, thermal pollution water कब होता है? जब hot water from factory, जब hot water factory से निकलता है and thermal plants is drained into river, जो thermal plants जो river में drain होता है and ponds, केवल river में ही नहीं, ponds में भी, before cooling, what would be the effect on aquatic life, और ये असर जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट्स, पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स। इन सब से क्या होता है? न्यूक्लियर प्लांट से, न्यूक्लियर एंड न्यूक्लियर वेपन से कॉजेस कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, सॉइल और वाटर पॉल्यूशन एक दूसरे से संबंधित हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, जब हम क्या करते हैं, ग्लास को डंप कर देते हैं। हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, इफ्लुएंस मीन्स होता है जो प्रवाह, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। Rain water percolates to the soil carrying the pollutants to the ground and the groundwater also gets contaminated. इस तरह से क्या होता है, सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं, फिर बारिश होती है तो वो बारिश का पानी और जो बह करके क्या होता है वो उसके साथ ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट या कंटामिनेटेड हो जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, नॉइज़ पॉल्यूशन केवल इरिटेट नहीं करता है और ना ही एंगर क्रिएट करता है, बल्कि और क्या क्या करता है, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने की क्षमता भी कम कर देता है, इंक्रीज हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, एंड ब्लड प्रेशर एमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और भी कई सारी परेशानियां होने लगती हैं। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट, अनवांटेड बहुत ज़्यादा शोर भी क्या होता है, इरिटेट करने लगता है। एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ये भी एक दबाव का सोर्स बन जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जैसे हम कहीं घर बिल्डिंग बन रहा हो, उसमें दीवार में ड्रिलिंग हो रही है, मशीन चल रहा है, आरा चल रहा है, उसमें बहुत मशीनें चल रही हैं, तो उसकी आवाज़ भी हमें इरिटेट करती हैं। ठीक, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, saws and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. These are the things which make a noise, so it creates a noise
pollution. Okay, we have studied about this. So revise all these topics. I will ask in the, 2 or 3 days after by taking online classes. Okay, so we get ready and prepare all the chapters. Okay, so here's your homework, today's homework paper. See this. In the map of India, locate dams from third chapter. Okay, Salal, Bhakra Nangal, Tehri, Hirakud, Sardar Sarovar. Okay, fill all these dams in map. Okay, so today only this much. Thank you.